My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of quantitative aptitude that appeared in CAT 2024 slot 3. And all these questions are memory based questions, so there might be some error in one or two questions. ठीक है, होना नहीं चाहिए, but probably हो सकता है because I have not appeared for slot 3. और slot 3 questions are memory based from other sources, from other students. So start करते हैं session को. And make sure to watch the session till the end and learn the techniques as well. Okay, so this is a learning as well. So first question, a plus b root 3 whole squared, this is equal to 52 plus 30 root 3, and we need to find out कि a plus b का value क्या होगा. What will be value of a plus b? Okay, so left hand side को square कर दो. So a square plus 3b square plus 2ab root 3. This is equal to 52 plus 30 root 3. अब कंपेयर करा लो. So a square plus 3b square, this is equal to 52. 52 and 2ab is equal to 30. यानी कि ab is equal to 15 आ गया. a into b is equal to 15. Also given was that a and b are integers. Okay. So a into b 15 है और a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 52 है. सो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? या तो 1 into 15 होगा और इट कुड बी 3 into 5. ठीक है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 15 या a इक्वल टू 15 b इक्वल टू 1, कुछ भी पॉसिबल है. बट अगर 1 और 15 वाला केस बनेगा तो a स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या है? अकेला ही 225 हो जाएगा, जबकि टोटल सम इज 52 ओनली. सो दैट इज वाई 1 into 15 वाला केस तो पॉसिबल नहीं है अपने लिए. 3 into 5 वाला केस हो सकता है. ओके, और 3 into 5 वाला केस है तो 3 स्क्वायर इज 9, तो 9 प्लस 25 into 3 75 नहीं बन सकता मामला. सो यानी कि b स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 9, e स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 25, और तब हमारा सम हो जाएगा 25 प्लस 27 दैट इज 52. तो यस, दैट इज मैचिंग. यानी कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3. सो सम ऑफ a प्लस b विल बी इक्वल टू 8. क्लियरली दिस विल बी द आंसर. 8 विल बी द आंसर. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. If fx plus 2 times of f of 1 by x, this is equal to 3x, then we have to find sum of all possible values if fx is equal to 3. Sum of possible values of x. Sum of all possible values of x if fx is equal to 3. So if given है fx is equal to 3, fx plus 2 times f of 1 by x is equal to 3x. So there is a simple जुगाड़ जहाँ से कि we can find out value of fx. x को रिप्लेस कर दो 1 by x से, रिप्लेस x with 1 by x, तो इक्वेशन बन जाएगा f of 1 by x plus 2 times f of 1 upon 1 by x which will be equal to x only. So plus 2 times fx, this is equal to 3 upon x. ओके, अब f1 by x को हमें कैंसिल आउट करना है, तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से एंड देन फर्स्ट में सबट्रैक्ट कर दोगे, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगा हमारा 2 times f of 1 by x प्लस 4 times f of x दैट इज इक्वल 6 by x. ठीक है, नाउ सबट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन. ठीक है, फर्स्ट में सबट्रैक्ट कर दोगे तो फर्स्ट था हमारा fx प्लस 2 times f of 1 by x इज इक्वल टू 3x. सबट्रैक्ट द सेकंड, तो this will cancel out. Minus 3 times f of x will be equal to 3x minus 6 upon x. So f of x will be equal to 2 by x minus x. 2 by x minus x. अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है fx is equal to 3 के लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x का सम क्या होगा. ठीक है, सो fx equal to 3 पुट कर दो यहाँ पे. सो fx is equal to 3, this is equal to 3. So 3 is equal to 2 by x minus x, which implies that 3x will be equal to 2 minus x square. So x square plus 3x minus 2, this is equal to 0. Okay, x square plus 3x minus 2, this is equal to 0. और x square plus 3x minus 2 is equal to 0, तो sum of roots क्या आ जाएगा x का? -3 आ जाएगा. तो sum of
वैल्यूज ऑफ एक्स, भाई x1 x2 जो भी दो वैल्यूज आएंगी उनका सम विल बी -3. ओके, अच्छा कमेंट में मेंशन करना क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था ना, कुछ भी और चेंज तो नहीं था. ठीक है, तो आंसर विल बी -3. किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी माइनर डिटेल में भी चेंज हो तो एक बार कमेंट जरूर मेंशन करना. ठीक है, अकॉर्डिंगली कमेंट जरूर मेंशन करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 is saying 3 to the power a is equal to 4, 4 to the power b is equal to 5, 5 to the power c is equal to 6, 6 to the power d is equal to 7, 7 to the power e is equal to 8, and 8 to the power f, this is equal to 9. So question was asking find the product a b c d e f. Find a into b into c into d into e into f, क्या वैल्यू होगा. ठीक है, दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. पहले सिंपल अप्रोच देखते हैं, ठीक है, फिर सेकंड अप्रोच में हम लॉग अप्लाई करेंगे. सो 3 टू पावर a इज इक्वल टू 4, 4 टू द पावर b इज इक्वल टू 5. तो सेकंड इक्वेशन में 4 टू द पावर b आ रहा है और फर्स्ट इक्वेशन से इंपोर्ट कर लो वैल्यू ऑफ 4. तो 4 का वैल्यू है 3 टू पावर a, रिप्लेस कर दो सेकंड इक्वेशन में. तो 3 टू पावर ab या 3 टू पावर a टू द पावर b विच इज इक्वल टू 3 टू पावर ab, दिस इज इक्वल टू 5. सिमिलरली नाउ रिप्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 टू द पावर c इज इक्वल टू 6 है. सो बस यहां से वैल्यू रिप्लेस कर दो 3 टू पावर ab to the power c, which is 3 to the power abc will be equal to 6. Similarly 6 to the power d यानी कि 3 to the power abcd is equal to 7, and hence 3 to the power abcde, सेम प्रोसेस बस आगे अप्लाई कर रहे हैं 8 और फाइनली आ जाएगा 3 to the power abcdef is equal to 9 और 9 is 3 square basically. So compare the powers because base तो सेम है, तो abcdef will be equal to 2. As simple as that, this is the answer. ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी डुएबल क्वेश्चन, एग्जाम में होना चाहिए था. ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1. सेकंड मेथड कुड हैव बीन कि लॉग ले लेते हैं हम. 3 टू पावर a इज इक्वल टू 4, लॉग ले लो बोथ साइड्स में. सो लॉग ऑफ 3 a टाइम्स, क्योंकि a आ जाएगा बाहर, a टाइम्स लॉग ऑफ 3 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 4. ओके, सो यहां से a विल बी इक्वल टू log 4 by log 3. Similarly b will be equal to log 5 by log 4. Similarly, c will be equal to log 6 by log 5. Okay, and so on. Now multiply a b c d e f, तो a b c d e f हो जाएगा हमारा log 4 by log of 3 into log 5 by log of 4 into log 6 by log of 5 and so on till log 9 by log of 8. तो log 4 से log 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, log 5 से log 5, log 6 से log 6 और log 8 तक कैंसिल आउट होगा. फाइनली बचेगा log 8 अपॉन log of 9. तो दिस विल बी log 9 अपॉन log of 3. log 8 तो कैंसिल आउट हो गया, log 9 अपॉन log of 3. सो दिस विल बी log of 9 ऑन द बेस 3 और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा इक्वल टू 2. बस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. आंसर विल बी 2 ओनली. क्या ये क्लियर है? बोथ मेथड्स आर क्लियर. ठीक है, दोनों में से किसी मेथड से सॉल्व कर लो. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 there is a chord in a circle and length of the chord is 10 root 3 and this chord subtends the angle of 120 degree at center of the circle. Subtends 120 degree angle at center. So question was asking find the area of minor segment. Find the area of minor segment. Okay. So if this is the circle, this is the chord 10 root 3, subtends angle of 120 degrees. Okay. So if this angle is 120, drop the perpendicular from the center on the chord and perpendicular will be bisecting the chord. Chord को bisect करेगा. So this length will be 5 root 3. और एंगल भी हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा. सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री हो जाएगा. 60 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है 5 रूट 3. 60 30 90 वाला ट्रायंगल बन जाएगा बिकॉज दिस इज राइट एंगल. दिस एंगल विल बी 30 के सामने वाला साइड विल बी 5 और 90 के सामने वाला साइड होगा डबल ऑफ 5 यानी कि 10. तो रेडियस हमारा आ जाएगा इक्वल टू 10. ओके, रेडियस विल बी इक्वल टू 10. क्लियर है? हमें चाहिए एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ दिस पोर्शन.
इसका एरिया चाहिए. सो एरिया ऑफ दिस पोर्शन विल बी एरिया ऑफ द सेक्टर. ठीक है, सेक्टर मेड बाई, लेट अस से दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी. सो सेक्टर मेड बाई ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी का हम एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो एरिया विल बी 120 डिग्री का टोटल एंगल है. सो 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर विच इज 10 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी, हाइट है हमारा 5 और बेस है हमारा 10√3. तो 1/2 इंटू 5 इंटू 10√3. So this becomes pi into 10 square by 3, 100 pi upon 3 minus 25√3. This will be area of the minor segment. Okay, clear है? ठीक है. कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं. अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, सोच सकते थे, बट हालांकि उसकी जरूरत नहीं है. ये दिस इज मोस्ट सिंपलर वे टू सॉल्व इट. अदरवाइज 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है. दीज टू आर रेडियस, सो दीज टू आर इक्वल, सो दीज टू एंगल्स विल बी 30 एंड 30. लेट अस से दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज 10√3. कोसाइन रूल भी अप्लाई कर सकते थे, या साइन रूल अप्लाई कर सकते थे. कोसाइन की जरूरत नहीं है, साइन से ही काम हो जाएगा. साइन रूल भी अप्लाई कर सकते थे और वहां से भी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे. बट आई पर्सनली फील दैट if you practiced a few questions, तो first वाला method will be much simpler. Okay, बात एक ही है दोनों में. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is कि what is the remainder when 10 to the power 68 this is divided by 13. So remainder क्या होगा when 10 to the power 68 is divided by 13. ओके, वन वे इज टोशेंट ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 एक प्राइम नंबर है, टोशेंट ऑफ 13 क्या होगा, प्राइम -1, ये कि 12 होगा. तो 10 टू पावर 68 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 5 इंटू 12 या 12 10 टू द पावर 12 टू द पावर 5. ठीक है, 5 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 13. हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. तो दिस कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 12 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 8 और दिस इज डिवाइड बाई 13. अब 10 टू द पावर 12 को 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा. तो 10 टू द पावर 12 टू द पावर 5 में ही रिमाइंडर 1 आएगा. हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है 10 टू द पावर 8 के रिमाइंडर से. ओके, एंड 13 1001 विच इज 10 क्यूब प्लस 1, 10 क्यूब प्लस 1, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 13. ये एक मल्टीपल ऑफ 13 है, इज दैट इट? सो 10 क्यूब इज 1001 माइनस 1, यानी कि 13 का मल्टीपल -1. ओके, सो 10 टू पावर 8 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 6 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 13. और 10 टू पावर 6 हमारा हो जाता है 10 क्यूब होल स्क्वायर, यानी कि 1001 माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 100, 100 है 91 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13. और हमें चाहिए रिमाइंडर. तो फर्स्ट केस में -1 टू द होल स्क्वायर, दैट विल बी द रिमाइंडर. सेकंड केस में 9 आएगा. सो यानी कि फाइनली अवर रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 9. ओके, और क्योंकि हमें अल्टीमेटली यूज करना ही पड़ा है 1001 इज इक्वल टू 10 क्यूब का, तो डायरेक्टली स्टार्ट में भी हम यूज कर सकते थे कि डायरेक्टली देख लेते हैं 10 टू पावर 68 है, दिस इज बेसिकली 10 टू पावर 66 इंटू 10 स्क्वायर. और 10 टू पावर 66 कैन बी रिटन 10 क्यूब टू द पावर 22, यानी कि 1001 या 13 के -1 टू द पावर 22 इंटू 91 प्लस 9. सो रिमाइंडर विल बी -1 टू द पावर 22 इंटू 9 विच विल बी इक्वल टू 9 ओनली. तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is saying that Sam, Amay and Vishal ठीक है, there are 3 persons such that Sam alone can complete a work in 20 days. Sam अगर अकेला वर्क करता है, so he is completing the work in 20 days. At the same time, Amay is twice as efficient as Sam. अगर Amay का efficiency is double that of Sam, so that implies कि time taken by Amay will be हाफ. अमय का एफिशिएंसी डबल है, 2 टाइम्स ऑफ सैम एफिशिएंसी है, यानी कि टाइम हाफ होगा, 10 डेज में वर्क कंप्लीट करेगा. सिमिलरली क्वेश्चन वाज सेइंग दैट अमय इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज विशाल. सो इफ अमय इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज विशाल, यानी कि विशाल का एफिशिएंसी 1/3 होगा. ठीक है, 1/3 होगा एफिशिएंसी विशाल का. तो विशाल का टाइम टेकन क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, यानी कि विशाल विल बी टेकिंग 30 डेज. सेम वर्क कर रहे हैं तो एफिशिएंसी एंड टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
तो विशाल से इफ अमय इज 3 times more efficient, 3 times efficient, more efficient नहीं, 3 times efficient than विशाल, तो डेफिनेटली टाइम टेकन बाय विशाल विल बी 3 times, 30 days होगा. क्लियर है? यहां से तुम वर्क एज्यूम कर सकते हो 20, 10 और 30 कैल्शियम, दैट विल बी 60 यूनिट्स. सो दिस विल बी आवर वर्क. अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी. एफिशिएंसी फॉर सैम विल बी 3 यूनिट्स, फॉर अमय विल बी 6 यूनिट्स, फॉर विशाल विल बी 2 यूनिट्स. ओके. देन क्वेश्चन इज सेइंग दैट सैम एंड Vishal start the work on day 1. So day 1 पे Sam and Vishal are working. Then on day 2 Amay and Sam are working. On day 3 Amay and Vishal are working. And then this cycle continues. Then the cycle continues till the work is completed. Okay. So 3 days में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है? 1 साइकिल में वर्क कितना कंप्लीट हो रहा है देख लेते हैं. So in day 1 the work done is S plus V यानी 3 + 2 5 यूनिट्स वर्क होगा. सैम की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है, विशाल की 2 यूनिट्स है. डे 2 पे A + S यानी कि 6 + 3 9 यूनिट्स वर्क कंप्लीट होगा. डे 3 पे A + V यानी कि 8 यूनिट्स वर्क कंप्लीट होगा. तो इन 1 साइकिल वर्क कंप्लीटेड इन 3 days वर्क कंप्लीटेड विल बी इक्वल टू 9 + 8 17 + 5 22 यूनिट्स. फिर नेक्स्ट 3 days में भी यही कहानी होगी 22 यूनिट्स. तो वर्क हो गया हमारा 44 यूनिट्स 6 days में. हमें करना था टोटल 16 यूनिट्स वर्क बचा है, तो अब एक और साइकिल तो नहीं कंप्लीट होगी अपनी. ठीक है. तो डे 7 पे वर्क होगा 5 यूनिट्स सेम एज द डे 1. डे 8 पे वर्क होगा 9 यूनिट्स सेम एज डे 2. तो 5 + 9 14 + 44 58 यूनिट्स वर्क हो गया है. तो डे 9 पे सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स ही बचा है, उतना ही वर्क होगा. ओके. और क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमसे एक्चुअल में कि सैम ने कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट किया है. तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय सैम, फ्रैक्शन of work completed by Mr. Sam. तो मिस्टर सैम बाबू ने कितना वर्क कंप्लीट किया है देखो. साइकिल्स में कितना किया है, 2 days वर्क किया है, वो तो क्लियर है. ठीक है. बिकॉज फर्स्ट डे पे किया है, सेकंड डे पे किया है. तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, फिर करेगा 4th डे 5th डे. तो 2 days वर्क कंप्लीट किया है साइकिल्स में, यानी 4 days तो हो गए यहाँ पे. 2 days यहाँ पे हो गए सैम के, 2 days यहाँ पे हो गए. और डे 7 और डे 8 पे भी किया है तो 2 days ही हो गए. टोटल 6 days का वर्क किया है. तो इन 6 days वर्क डन बाई सैम डिवाइडेड बाई वर्क टोटल. तो 6 इंटू सैम का एफिशिएंसी 3 है, 6 इंटू 3 बाई 60. तो दिस इज 3/10. आंसर विल बी 3/10. वर्क कंप्लीटेड बाई सैम इज 3/10. फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज 3/10. ओके. क्लियर? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. So in question number 7, there is a triangle ABC. A triangle ABC. Then AB, BC and CA are the medians are. ठीक है. AB, BC, CA तो साइड्स हैं हमारी. ठीक है. And then AQ, BR and CP, these are medians. Okay. Clear है? And now if we connect PQ, PR and QR, so they intersect the median lines at X, Y and Z. X, Y and Z. So question is saying that if area of triangle ABC, this is equal to 1440, तो area of triangle XYZ क्या होगा? What will be area of triangle XYZ? Now this was a theta question. So area of this triangle क्या होगा? Okay. So area of triangle XYZ क्या होगा? PQR are midpoints of AB, BC and CA. Similarly, XYZ are midpoints of PQ, QR and PR. So area of triangle PQR will be 1/4 that of triangle ABC. Because similar triangles हैं और ratio of sides क्या है? 1/2 है. Similarly, area of triangle XYZ will be 1/4 of area of triangle PQR. So area of triangle XYZ, this will be equal to 1/4 whole square times area of triangle ABC.
So this will be 1 by 16 into 1440. So answer will be 90. The answer for this question will be 90. Okay, ठीक है, simple question. Question number 8. That Mr. Gopi marks up the price of an article by 20%. By 20%. ठीक है. Then Ram purchases article at 10% discount. 10% discount, thus saving rupees 15. So the question is, profit made by Gopi क्या होगा? Profit made by Gopi. Simple question. ठीक है. Gopi marks up price of an article by 20%, then Ram purchases the article at 10% discount, thus saving rupees 15. तो profit made by Gopi क्या होगा? So article का price was marked up by 20%. And then there is a discount of 10%, due to which there is a saving of rupees 15 by Ram. तो 10% के डिस्काउंट से 15 रुपीज का सेविंग हुआ है, which implies कि 10% of the marked price is equal to rupees 15. So marked price is equal to rupees 150. 10 times होगा because 10% 1 by 10. 150 रुपीज इज मार्क प्राइस. और गोपी ने मार्क अप किया था 20% से. 20% यानी कि 1/5 से मार्कअप किया था. तो इफ 5 वाज द कॉस्ट प्राइस, तो 6 वाज द मार्क प्राइस. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस यहां से आ जाएगा हमारा इक्वल टू 150 इंटू 5/6, बिकॉज 1/5 का मार्कअप है. 5 अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 का मार्कअप किया है, 5 + 1 6 यूनिट्स हमारा हो गया मार्क प्राइस. दैट इज वाई 5/6 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा मार्क प्राइस का. तो 150 इंटू 5/6, दिस विल बी 125 रुपीज. तो कॉस्ट प्राइस यहां से आ गया. और सेलिंग प्राइस क्या होगा? सिंस ही सेव्ड 15 रुपीज, ठीक है, 150 रुपीज मार्क प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस विल बी 15 रुपीज लेसर. तो सेलिंग प्राइस इज 135 रुपीज. ओके, सेलिंग प्राइस इज 135, कॉस्ट प्राइस इज 125. तो प्रॉफिट मेड इज 10 रुपीज. प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 10. ओके, क्लियर है? तो दिस वाज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डेफिनेटली अ डूएबल क्वेश्चन एग्जाम में. अगर ये क्वेश्चन कोई छोड़ के आया है तो गड़बड़ है, फिर समस्या है. ठीक है, देन यू हैव टू चेक कि कहां पे गलती रह गई, क्या कमी रह गई आखिर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. So after 2 successive increments in the salary, ठीक है, Gopal's new income is 187.5% of his initial salary, of his initial income. Okay. Also given is that percentage of increase in second year is double that of percentage increase in first year. Percentage increase in first year. So question is asking कि फर्स्ट ईयर का परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर क्या होगा. ओके, और ऑप्शंस गिवन वर 15%, 20%, 25% एंड 30%. सो व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर का डबल है, तो क्वेश्चन वाज परसेंटेज इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर. नाउ सिंस ऑप्शन वर गिवन, तो बेस्ट वे वाज टू यूज द ऑप्शंस. ठीक है, यूज द ऑप्शंस. फर्स्ट ईयर का इंक्रीज अगर हम 15% एज्यूम कर लें, 15% फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुआ है, सेकंड ईयर में 30% हुआ है, सक्सेसिव इंक्रीज है. फॉर्मुला लगा दो, 15 + 30 प्लस 15 × 30 / 100. ठीक है, 15 × 30 / 100. और टोटल न्यू सैलरी ऑफ गोपाल इज 187.5%. तो एक्चुअल इंक्रीज कितना आया है? इंक्रीज हुआ है 87.5% का. सो दिस इज डेफिनेटली लेस देन 87.5. तो ये तो आंसर नहीं है. ओके, द बेटर ऑप्शन वुड हैव बीन टू सॉल्व विद सिंपल कैलकुलेशंस, यानी कि हम
और बीच की वैल्यूज लो, यानी कि 20 और 25 में से कोई एक ऑप्शन लेते हैं स्टार्ट विथ, ठीक है। लेट अस से 20 एग्जांपल ले लें, 20 और नेक्स्ट टाइम होगा 40% प्लस 20 इंटू 40 बाई 100, सो दिस विल बी 68%, विच इज स्टिल लेस देन 87.5. 25 शुड बी द आंसर, ठीक है। 25 शुड बी द आंसर. 25 प्लस 50 विच इज 75 प्लस 25 इंटू 50 यानी कि 1250 बाई 100, 12.5, यानी कि दिस इज 87.50, सो दिस विल बी द आंसर स्ट्रेट अवे, ठीक है। देखो मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, बट द पॉइंट इज कि एग्जाम में तुम क्या करोगे, यू शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ मिडिल वैल्यू, और उस वैल्यू से स्टार्ट करो जहां पे कैलकुलेशन हमारे लिए सिंपल हो. 20, 25 किसी भी एक से स्टार्ट कर दोगे, और जिससे स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड विद 20, यू गॉट द आंसर 68%, सो डेफिनेटली द आंसर शुड बी हाइयर देन 20%, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है. सो नेक्स्ट शुड बी 25. अगर लोअर होता तो नेक्स्ट उसके बाद में तुम 15 आंसर लेते, और या फिर डायरेक्टली मार्क कर देते हैं 15, बिकॉज अगर आंसर लोअर होना है, 20 से छोटा होना, और एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और नन ऑफ दीज ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो 15 ही आंसर होता है उस केस में, ठीक है. इस केस का आंसर है हमारा 25. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. Now question number 10 is that term 1 of a series is equal to 1, term 2 of the same series is equal to minus 1, and then term n of the series is given as n minus 3 upon n minus 1 times term n minus 2. Okay, if n is greater than or equal to 3. So question is asking ki find the sum of 1 by t2 plus 1 by t4 till 1 by t 2024. Okay, so this was the question. So t1 और t2 नोन है, और t2 से t2 t4 t6 सारे के सारे इवेंट टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो t4 की बात करते हैं. t4 n इज इक्वल टू 4 पुट किया, सो 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू t2, so this becomes 1 by 3 into t2, और t2 is equal to -1, तो -1 by 3 आ जाएगा t4. और t6 will be equal to 6 minus 3 upon 6 minus 1 into t4, so this is 3 by 5 into -1 by 3, so with this will be -1 by 5. पैटर्न दिख रहा होगा, -1 -1 by 3 -1 by 5, अगला होगा -1 by 7, और ऑल्सो if this is 4 this is -1 by 3, if this is 6 this is -1 by 5, तो 2024 क्या होगा, -1 by 2023, ठीक है. बट हमें सारे केसेस में रेसिप्रोकल का सम चाहिए, सो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by t2 will be equal to -1 only, 1 by t4 will be -3 only, 1 by t5 will be -5 only, t6 will be -5 only, and so on, और लास्ट टाइम will be -2023, और सबका सम चाहिए, माइनस कॉमन ले लो, सो दिस विल बी इक्वल टू -1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन टिल 2023. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, t2 t4 डिवाइड बाई 4, 2024 डिवाइड बाई 2, सारे के सारे इवेंट टर्म्स हैं, 2024 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1012 टर्म्स है टोटल. ओके, एंड ऑल दीज 1012 टर्म्स आर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स. कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, n स्क्वायर फॉर कॉन्सेक्यूटिव ऑड्स. The sum will be minus of 1012 whole squared. Okay, minus of 1012 whole squared. Clear है, ठीक है. और इन दिस केस ऑप्शंस गिवन वर, बिकॉज अब यहां पे कैलकुलेट करना होगा ना, तो या तो कैलकुलेटर यूज कर लोगे यहां पे, अदरवाइज ऑप्शंस गिवन वर -1026 164 -1024 144 -1023 132 एंड -1022 121. ठीक है, डेफिनेटली ऑड तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑल्सो लास्ट में यूनिट 4 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, और सिंस 12 स्क्वायर है, लास्ट में क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 12 स्क्वायर है तो लास्ट में 4 आएगा, सो लास्ट टू डिजिट्स शुड बी 44 एंड हेंस ऑप्शन, दिस ऑप्शन विल बी द आंसर -1024 144. ओके, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और बाकी कैलकुलेट करना होगा तो फिर कैलकुलेटर तो है ही है तुम्हारे पास, कैलकुलेट कर लोगे. ओके, क्लियर है. ओके, तो नीडेड नहीं है तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, स्टेट अभी बस लास्ट टू डिजिट्स देखोगे, आगे बढ़ोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राकेश has 20 hectares
ऑफ लैंड, ठीक है, एंड विमल हैज 30 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. And in Vimal's field, the ratio of wheat and mustard is 5:3. Okay. And overall ratio, including Rakesh and Vimal ka field, wheat or mustard ka ratio is 11:9. So question is asking wheat mustard ratio in the Rakesh का field क्या होगा? Okay, this was the question. Now isn't this question same as कि northern hemisphere, southern hemisphere ratio given है हमें, एक hemisphere का overall अर्थ का ratio given है water और land का, isn't it so? तो similar question ही है, isn't it so? Similar question है. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो वैसे हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, isn't it so? ठीक है, सो टोटल for Rakesh as well as Vimal's field, ratio of wheat and mustard is 11:9. 11:9. While only for Vimal the ratio is 5:3. तो सबसे पहले 11 + 9 is 20, 5 + 3 is 8. तो सबसे पहली बात कंपेरेबल्स, ओनली कंपेरेबल्स मस्ट बी कंपेयर. तो पहले इनको कंपेरेबल बनाने यानी कि इक्वल बनाएंगे तब तो कंपेयर कर पाएंगे. तो फर्स्ट केस में 20 है, सेकंड में 8 है, तो एरिया पहले इक्वल तो करो. तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 40 हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 40 होगा, और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. ओके, दोनों को 40 बना लिया, बट इक्वल कर दिया. इक्वल थोड़ी करना है अल्टीमेटली. राकेश का फील्ड का एरिया है 20 हेक्टेयर्स, विमल का फील्ड का एरिया है 30 हेक्टेयर्स, टोटल इज 50 हेक्टेयर्स. टोटल इज 50. ठीक है, तो विमल का फील्ड का एरिया 30 है और टोटल है 50. तो दिस रेशियो इज, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं टोटल की, टोटल इज 50 एंड इन केस ऑफ विमल दिस इज 30. ओके, तो 5:3 का रेशियो है एक्चुअल में. तो क्योंकि अभी हमने इक्वल किया है तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल को, और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से. नाउ सिंस दोनों ही केसेस में हम 5 से मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं, तो इस 5 को कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि लास्ट में कैंसिल आउट हो ही जाना है, कॉमन आ जाएगा. अब कहानी कर दो. ठीक है, अब कहानी कर दो. तो फर्स्ट केस वैल्यू क्या आ रहा है? 11 × 2 22 आ रहा है. चलो राइट हैंड साइड में लिख के सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 22 आ रहा है. 22 = 18. पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, सेकंड में मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि 5 तो कैंसिल आउट हो गया. तो 5 × 3 15 = 9. तो 22 - 15 बच गया 7, और 18 - 9 बच गया 9. तो फाइनल आंसर विल बी 7:9 फॉर द फील्ड ऑफ राकेश. व्हीट एंड मस्टर्ड का रेशियो फॉर द फील्ड ऑफ राकेश, फॉर द फील्ड ऑफ राकेश. ठीक है, और ऑप्शंस में व्हीट और मस्टर्ड का ऑर्डर यही दिया होगा. अगर उल्टा ऑर्डर होगा तो फिर आंसर उल्टा हो जाता है. ठीक है, तो ऑर्डर वगैरह का ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है. क्या क्लियर है? 7:9 विल बी द आंसर. इज दिस मेथड क्लियर? ठीक है, ये मेथड बेटर अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि अगर कैलकुलेशन हमारा और टिपिकल होता तो चीज़ें मुश्किल हो सकता था. अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे फिर तुम कि इंडिविजुअली निकालते कि 30 हेक्टेयर से 5:3 आ रहा है. ठीक है, टोटल 8 है, टोटल 8 है, तो 8 की वैल्यू है 30, 8 की वैल्यू है 30, 4 की वैल्यू आ जाएगी 15, एक केस में 5 है, यानी 1 यूनिट ज़्यादा है. 1 यूनिट कितना होगा हमारा? 3.75 होगा. ठीक है, सो 15 + 3.75 दिस विल बी 18.75, दिस विल बी 11.25. तो ये एक्चुअल वैल्यूज आ गई. टोटल 50 हेक्टेयर्स है. 50 हेक्टेयर्स में कितना है? 10, हाफ होता है 25, और 1 यूनिट कितना होगा? 2.5. तो दिस विल बी 27.5, दिस विल बी 22.5. और यहां से डिफरेंस लेके तुम वैल्यू निकाल सकते हो राकेश के फील्ड के लिए भी. ठीक है, कि राकेश के फील्ड में फिर क्या वैल्यू आ जाएगा? व्हीट विल बी 27.5 - 18.75, यानी कि 7.5 + 1.25 8.75. मस्टर्ड विल बी 22.5 - 11.25, यानी कि 11.25 ओनली. 1.25 से 7 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो रेशियो इज 7:9. ओके, सो इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज up to 500 how many numbers are there? How many numbers contain all distinct digits? All distinct digits up to 500. How many numbers contain all distinct digits? Okay, ठीक है. So
फर्स्ट डिजिट, 1 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे? 1 डिजिट के तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट ही हैं, तो 9। 2 डिजिट नंबर्स डेफिनेटली 0 तो नहीं हो सकता हमारा 10 डिजिट पे, ठीक है। तो 10 डिजिट पे वी हैव 9 ऑप्शंस, 9 ऑप्शंस। अब यहाँ पे कोई एक डिजिट फिलअप हो गई होगी, तो बची हुई डिजिट्स कितनी बची होंगी? क्योंकि जो डिजिट फिलअप हो गई अब वो तो फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो फिलअप नहीं कर सकते और 0 अलाउड है। सो अब 10 में से 9 डिजिट्स बची हैं, 9 डिजिट्स फिलअप कर सकते हो, 9 to 9 81 सच नंबर्स विल बी देयर। नाउ 3 डिजिट नंबर्स, 9 ऑप्शंस एट दिस प्लेस बिकॉज 0 नहीं हो सकता। एक डिजिट फिलअप हो गया तो अब यहाँ पे भी 9 ऑप्शंस होंगे और फिर यहाँ पे एक और फिलअप हो गया तो अब 8 ऑप्शंस होंगे। तो 9 into 9 into 8, एक सेकंड अप टू 500 है, अप टू 500 है, अप टू 500। तो 0 तो नहीं फिलअप हो सकता, एक सेकंड इसको दोबारा से कर लेते हैं। देखो 0 फिलअप नहीं हो सकता यहाँ पे, बट डिजिट्स हमारी आ सकती है 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शंस आर देयर, कोई एक फिलअप हो जाएगा। सो आगे ऑप्शंस आएंगे 9 और फिर बचेगा 8, तो 72 into 4 288। सो 288 प्लस 81 प्लस 9 यानी कि 378 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 378। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देयर इज ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, ABCD EFGH, साइड लेंथ है 6 सेंटीमीटर and alternate vertices are joined to form a square. Alternate vertices are joined to form a square. So we have to find the area of the square. Find area of the square. Okay. ठीक है। सो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर। दिस इज द ऑक्टागन। नाउ लेट अस से अल्टरनेट वर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको ज्वाइन करेंगे विद दिस वर्टेक्स, सिमिलरली हियर। So this will be a square. I need to find out area of this square. Okay. So first approach could be, because octagon हम कैसे बनाते हैं, एक स्क्वायर बना लो, स्क्वायर के कॉर्नर्स को कट करोगे तो हमारा ऑक्टागन बन जाएगा। सो उस स्क्वायर को कंप्लीट कर दो, कंप्लीट द स्क्वायर। ऑक्टागन हैज 8 साइड्स, एक्सटर्नल एंगल होगा हमारा 360/8 45 डिग्रीज, तो इंटरनल एंगल्स का वैल्यू क्या होगा 135 डिग्रीज। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 135 डिग्रीज, इजंट इट सो? ठीक है। So let us say focus on this triangle. So all sides are 6, this is 6, this will also be 6, this angle is 90 and these two are equal, so these angles will be 45 45, और अगर 45 45 है so this will be 6/√2, this will also be 6/√2. okay, ठीक है। now focus on this triangle. This is also a right angle triangle, है कि नहीं? This is also a right angle triangle. So in this right angle triangle, this side is 6/√2, this side is 6/√2 plus 6, and this side is side of the square. Let us say this is AC, ठीक है, AC. If this is A, this was B, this was C, ठीक है, this was D, this was E, and so on. So this is AC. और एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें। एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी साइड का स्क्वायर, साइड लेंथ का स्क्वायर होगा एरिया का स्क्वायर, ठीक है। सो AC स्क्वायर, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो AC स्क्वायर, इफ दिस पॉइंट इज लेट अस से P, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ओके, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, AP स्क्वायर क्या होगा 6/√2 होल स्क्वायर, ठीक है, 6/√2 होल स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, PC क्या है 6/√2 प्लस 6 होल स्क्वायर। सो 6/√2 होल स्क्वायर आ जाएगा 6 स्क्वायर बाई 2 36/2 18 प्लस 6/√2 होल स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा 18 प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 2 into 6 into 6/√2,
तो 2/√2, तो √2 आ जाएगा 36√2. दिस इज 36 + 36, यानी कि 36 कॉमन ले लो, 2 + √2. 36 × 2 + √2, दिस विल बी द एरिया, दिस विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? ये तो एक अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को करने का. एक और अप्रोच देख लेते हैं जहां पे कि हम विल बी अप्लाइंग कोसाइन रूल और चीजें सॉल्व हो जाएंगी वहां से. ठीक है, कोसाइन रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? देखो, फोकस ऑन दिस ट्रायंगल नाउ. ओके, फ्रेश पेज पे बनाते हैं, बट इस ट्रायंगल पे हम फोकस करेंगे. सो इन दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी. ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, AB and BC are equal because ये तो साइड्स हैं ऑक्टागन की, रेगुलर ऑक्टागन की. दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6, दिस एंगल इज 135 एंड आवर कंसर्न इज टू फाइंड आउट AC, लेंथ ऑफ AC. ओके, लेंथ ऑफ AC हमें फाइंड आउट करना है. सो इफ यू अप्लाई कोसाइन रूल cos of 135, बिकॉज जब भी हमें कोसाइन रूल कनेक्ट्स 3 साइड लेंथ्स विद 1 एंगल. सो इफ वी हैव बीन गिवन 2 साइड लेंथ्स एंड 1 एंगल, देन वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द थर्ड साइड. ठीक है, सो cos of 135 degrees, this is equal to 6 square plus 6 square AB square plus BC square minus AC square. Let us say this is x, so minus x square. Divide by 2 into 6 into 6. So this is 72 minus x square divided by 72. And cos of 135 क्या होगा? This cos of 135 is cos of 90 plus 45. और cos of 90 plus theta is minus of sin theta. So minus sin of 45 degrees. So this will be minus 1 by √2. So that is equal to 72 minus x square upon 72. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 72 √2 minus x square √2. This is equal to minus 72 √2. So √2 x square will be equal to एक सेकेंड. हाँ, ये तो ठीक है, यहाँ पे अपना minus 72 आएगा, √2 थोड़ी आएगा. ठीक, सो √2 x square will be equal to 72 √2 plus 72. Now divide by √2, so x square will be 72 plus 72 upon √2. So this will be 72 plus 36 √2. 36 को कॉमन ले लोगे, 36 into 2 plus √2 will be the answer. और x square ही तो चाहिए था, because area of the square will be x square only. तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को. Is that part clear? क्या ही समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 हो गया. क्वेश्चन नंबर 14. In question number 14, there is a person, if the person travels, if A travels with 6 km per hour, lesser speed than usual speed, less than usual speed, in such a case, he takes 6 hours more to cover the same distance. ठीक है, if instead he travels with 6 km per hour more than the usual speed, he takes 4 hours less. 4 hours less. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी. टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी क्या होगा? फाइंड द डिस्टेंस. ओके, सो इन बोथ दीज केसेस डिस्टेंस तो सेम है हमारा, और क्योंकि कुछ भी और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, एक अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है, दैट यू विल बी मेकिंग इक्वेशंस दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू यूजुअल स्पीड इज s, यूजुअल टाइम इज t, तो s into t. इन सेकेंड सिनेरियो स्पीड इज 6 km per hour लेस, तो s minus 6 हो गया स्पीड, और टाइम हो गया t plus 6. थर्ड सिनेरियो में स्पीड हो गया 6 km per hour मोर, तो s plus 6 स्पीड हो गया है, और टाइम हो गया t minus 4. तो यहां से इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे. ठीक है, फर्स्ट टाइम कंपेयर करोगे इन दोनों को, सेकंड टाइम कंपेयर करोगे इन दोनों को, इक्वेशन 2 बन जाएंगे, उनको सॉल्व कर लोगे एसओटी में. 2 अननोन 2 इक्वेशंस सॉल्व हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? बट बेटर अप्रोच क्या होगा? ठीक है, ये तरीका तो है ही है सॉल्व करने का. अगर तुम्हें फॉर्मुला एक्जैक्टली याद नहीं रहता एग्जाम टाइम में, तो डेफिनेटली ऐसे सॉल्व कर ही सकते हो.
ठीक है, बट बेटर अप्रोच होगा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S1 into S2 speed in the first case, speed in the second case divided by delta S and difference in the speeds multiplied by difference in time. S1 S2 by delta S into delta T. ठीक है, S1 S2 by delta S into delta T. तो हमारे पास दो सिनारियोज हैं, फर्स्ट सिनारियो तो देखो, एक तो यूजुअल स्पीड वाला केस है, सेकंड केस में क्या है, स्पीड तुमने किया S minus 6 स्पीड 6 से डिक्रीज किया, so time became T plus 6. और in the third case speed you increased by 6 and hence time decreased by 4 hours. ठीक है, सो इन द फर्स्ट एंड सेकंड केस स्पीड में चेंज कितना है, 6 का, डेल्टा एस इज 6, डेल्टा टी इज ऑल्सो 6, तो डिस्टेंस हमारा विल बी इक्वल टू S1 इंटू S2 यानी S इंटू S माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू डेल्टा टी इज ऑल्सो 6 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो. ओके, क्लियर है भाई, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो तो S इंटू S प्लस 6 और डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स है 6 का और डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना है 4 का. 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 6S माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 4S प्लस 24. सो 2S इज इक्वल टू 60, S इज इक्वल टू 30 आ जाएगा यहां से. बट क्वेश्चन में S नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है D, तो बस इक्वेशन में अपना पुट कर दोगे S इक्वल टू 30. सो यहां से D विल बी इक्वल टू 30 इंटू 24 इंटू 6 बाई 6 यानी कि 720 विल बी द आंसर. 720 किलोमीटर will be the distance. Okay, 720 kilometer will be the distance. Answer will be 720 in this case. Clear? Okay. Question number 15. Sum of all distinct values of 10 to the power x plus 4 upon 10 to the power x which is equal to 81 upon 2. तो sum of all distinct values क्या होगा? सबसे पहला काम यहाँ पे 10 to the power x को replace by some other variable, let us say z. ठीक है, 10 to the power x is equal to z कर दिया हमने. So इक्वेशन बन जाएगा हमारा z plus 4 by z is equal to 81 upon 2. मल्टीप्लाई बाई z, एक सेकंड, ये z थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा कर रहा है क्योंकि 2 भी है साथ में, y ही कर लेते हैं, y. तो y प्लस 4 अपॉन y दैट इज इक्वल टू 81 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2y, तो 2y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 81y. तो इक्वेशन में गया 2y स्क्वायर माइनस 81y प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0. अब यहां से दो रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं. सबसे पहला रिजल्ट क्या मिल रहा है, सम ऑफ रूट्स यानी कि y1 प्लस y2. ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है हमारा, y1 प्लस y2. अगर y1 y2 रूट्स होंगे तो y1 प्लस y2 विल बी इक्वल टू 81 बाई 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, y1 इंटू y2 दिस इज इक्वल टू 8 बाई 2 विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 4. और क्वेश्चन में पूछा सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x का सम क्या होगा, ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन. ओके, सो हमें क्या मिल गया है, y1 प्लस y2 मिल गया, y1 इंटू y2 मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x1 प्लस x2 चाहिए. हमारा पर्पज y1 y2 निकालना नहीं है, हमारा पर्पज है सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x यानी कि x1 प्लस x2 निकालना है हमें. और y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, तो y1 आ जाएगा हमारा इक्वल टू 10 टू द पावर x1, y2 आ जाएगा 10 टू द पावर x2. सो इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू तो y1 इंटू y2 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x1 इंटू 10 टू द पावर x2 यानी कि दिस विल बी 10 टू द पावर x1 प्लस x2. ओके, सो y1 इंटू y2 यानी 10 टू द पावर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4. और हमें x1 प्लस x2 चाहिए, तो लॉग ले लो बोथ साइड्स पे, दोनों साइड्स पे लॉग ले लो. तो x1 प्लस x2 टाइम्स लॉग ऑफ 10 दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4. लॉग ऑफ 10 तो 1 हो जाएगा ऑन द बेस 10, सो दिस विल बी लॉग ऑफ 4 विल बी लॉग ऑफ 2 स्क्वायर यानी 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2. सो x1 प्लस x2 विल फाइनली बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log of 2. This will be our answer. Okay. Is this clear? ठीक है. Next question, question number 16. Question number 16.
So a person, let us say person is A, he invested rupees 4,000 in the bank, rupees 4,000, okay, and amount after 3 years and amount after 5 years का रेशियो आ रहा है हमारा 25:36. अमाउंट आफ्टर 3 years एंड अमाउंट आफ्टर 5 years का रेशियो आ रहा है 25:36, और इन्वेस्ट किया है जो रुपीज 4,000, ये दिस इज इन्वेस्टेड एट सम कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, ठीक है. क्वेश्चन इज आस्किंग आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स the amount will be more than greater than 20,000. Basically amount will be greater than 20,000, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट विल बी ग्रेटर देन 20,000. और थर्ड ईयर के बाद का अमाउंट और फिफ्थ ईयर के बाद का अमाउंट का रेशियो इज 25:36. ओके, क्लियर है. ठीक है, तो रेशियो हमारा क्या है, A5/A3, दिस इज इक्वल टू 36/25, विच इज 6/5 होल स्क्वायर्ड, और 2 ईयर्स का टाइम पीरियड का गैप है, यानी कि अमाउंट हमारा थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में कितना हुआ होगा, 5 से 6 हुआ होगा, और फिर फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर में भी क्या हुआ होगा, 5 से 6 हुआ होगा. दैट इज वाई 25 से 36 हो गया अमाउंट हमारा थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर में, यानी कि रेशियो क्या है हमारा 5 से 6 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है इन 1 ईयर. तो अगर 1 ईयर में 1 यूनिट का इंक्रीज आ रहा है 5 यूनिट्स में, यानी कि 20% इंटरेस्ट रेट होगा, रेट परसेंट विल बी 20%. क्या ये पार्ट क्लियर है? रेट परसेंटेज 20%, और हमारा अमाउंट 4,000 से हो जाना चाहिए 20,000 एंड अबव, यानी कि 5 टाइम्स से ज्यादा हो जाना चाहिए इन एन ईयर्स. 4,000 से 20,000 यानी कि 5 टाइम्स से ज्यादा हो जाना चाहिए, बिकॉज 20,000 इज 5 टाइम्स. और एक ईयर में अमाउंट में इंक्रीमेंट आ रहा है 20% का, कंपाउंडिंग हो रहा है. ठीक है, ओके. तो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग कि 1.2 टू द पावर n, दिस शुड बी ग्रेटर देन 5. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस विल बी ट्रू. 1.2 टू द पावर n, दिस विल बी ग्रेटर देन 5. ओके, या फिर कह सकते हो 6/5 टू द पावर n, दिस विल बी ग्रेटर देन 5. अब एक तरीका यहां पे है टू यूज कैलकुलेटर. जो कैलकुलेटर गिवन था उस कैलकुलेटर को यूज करना चाहिए था. ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर शुड हैव बीन यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, 1.2 को मल्टीप्लाई करते रहते और निकाल लेते कि इतने टाइम के बाद में 1.2 टू द पावर n विल बी ग्रेटर देन 5. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 9. अभी तो हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, सो विल बी अप्रोक्सीमेटिंग इट. तो 6/5 है, टू द पावर 2 तो पता ही है हमको, 36/25 टू द पावर 4 कर दो, आ जाएगा 36 का स्क्वायर इज 1296/625. तो दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2. 1296/625, दिस इज ग्रेटर देन 2. बट एक्चुअल वैल्यू क्या रहा है, दिस इज 625, दिस इज 1296, यानी 1250 प्लस 46, दिस इज 1250 प्लस 46, और 46 कितना आएगा, 6 7 42, यानी कि रफली 7% के आसपास. तो ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा 2.07 के आसपास की वैल्यू आ रहा है. इज दैट इट सो? जब हम टू द पावर 4 कर रहे हैं, तो 6/5 टू द पावर अगर हम 8 करें, सो पावर 4 हमारा कितना है, 2.07, दिस विल बी 2.07 होल स्क्वायर्ड. सो 2.1 होल स्क्वायर इज 4.41. 2.07 होल स्क्वायर विल बी लेस देन 4.41 और ग्रेटर देन 4 होगा, तो रफली दिस विल बी अराउंड 4.3 के आसपास होगा. 4.25 से 4.3 के आसपास होगा. ठीक है, अगर हम 4.25 भी मान लें वर्स्ट के सिनेरियो में, ठीक है, अगर हम 4.25 भी मान लें लेट्स से, सो अब इसके बाद में इंक्रीमेंट हमें कितना करना है, 20% करना है नेक्स्ट ईयर. 4.25 ऑलरेडी हो चुका है, तो 20% ऑफ 4.25 कितना होगा, दिस विल बी प्लस 0.85, यानी कि दिस विल बी ग्रेटर देन 5. यानी कि n इज इक्वल टू 8 पे हमें डेफिनेटली पता है कि द अमाउंट इज लेस देन 5 टाइम्स, और n इज इक्वल टू 9 पे अमाउंट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 5 टाइम्स. तो डेफिनेटली आंसर विल बी n इज इक्वल टू 9. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? यहाँ पे जुगाड़ से हमने कैसे कैलकुलेट किया. ठीक है, नॉट यूज एनी कैलकुलेटर, हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया, एक एस्टिमेशन किया, उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके. और ऐसा एस्टिमेशन, ऐसा अप्रोक्सीमेशन हमको आना चाहिए, इतना करना आना चाहिए. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17. The question is that mod of x plus y plus mod of x minus y, this is equal to 2. So
नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कितने होंगे इन दिस केस? ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? सो फर्स्ट थिंग इज इफ यू हैव सॉल्व दिस इक्वेशन एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, देन यू नो कि ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है. दिस इज लाइक अ बॉक्स, एंड इफ यू पुट x इक्वल टू 0 तो y विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज 1 कॉमा 1, 1 कॉमा -1, -1 कॉमा -1 एंड -1 कॉमा 1. दीज आर द 4 पॉइंट्स. ठीक है, सो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए हमें. सो दीज 4 आर डेफिनेटली इंटीग्रल सॉल्यूशंस. एट दिस पॉइंट x इज 0, सो y विल बी इक्वल टू 1, 0 कॉमा 1 और 0 कॉमा -1. और here where y is 0, so 1 comma 0 and this is -1 comma 0. So total solutions हो गए हमारे 4 plus 4, 8 solutions are there. So this will be the answer, 8 will be the answer. ये तो एक अप्रोच हो गया इसको सॉल्व करने का. ठीक है, अगर ग्राफ पता है तो. अदरवाइज क्या करोगे कि mod of x plus y plus mod of x minus y this is equal to 2. तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दीज आर मॉड्यूलस सो बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. भाई डेफिनेटली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होंगे. ठीक है, ये तो पक्का पता है. ओके ठीक है, सो केसेस क्या क्या बन सकते हैं? ईदर वी कैन से दैट दिस इज 0, दिस इज 2, और दिस इज 0, दिस इज 2, और बोथ आर इक्वल टू 1, और बोथ आर इक्वल टू 1. ठीक है, इफ मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 तो x प्लस वाई कैन बी +2 और -2. ठीक है, तो हम मॉड के अंदर की वैल्यूज के लिए बात करें तो दिस कैन बी +-2. ओके, प्लस मॉड ऑफ 0. सिमिलरली दिस कैन बी +-2. इजंट इट सो? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलने वाले हैं? सारी वैल्यूज को मॉड के अंदर कर दिया ताकि आप समझ में आ जाए. तो अगर मॉड ऑफ +-2 है यानी कि एक केस में आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू +2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो वहां से x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी. एक केस में आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वहां से वैल्यूज मिल जाएंगी. तो यहाँ पे दिस विल गिव यू 2 सॉल्यूशंस, दिस विल गिव यू 1, 2 into 1, 2 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे यहाँ से फर्स्ट केस में. सेकंड केस में यहां से एक इक्वेशन बनेगा, यहां से 2 इक्वेशन बनेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू +2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यानी कि टोटल 2 केसेस बनेंगे, 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे. और यहां पे तुम्हें 2 इक्वेशंस मिलेंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू +-1 से, x माइनस वाई इज इक्वल टू +-1 से 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 into 2, टोटल 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस. तो 2 + 2 + 4 8 सॉल्यूशंस होंगे इन टोटल. द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब सॉल्व करोगे तभी एग्जैक्टली आइडिया लगेगा. अगर तुम्हें ऐसे एस्टिमेशन नहीं है कि कितने इंटीग्रल होंगे, सारे इंटीग्रल होंगे, बट वो सॉल्व करके तुम्हें आइडिया लगेगा उस तरह से. क्लियर है? और इंटीग्रल इसलिए होंगे क्योंकि सारी केस में जब तुम ऐड करोगे, व्हेन यू आर एडिंग, तो तुम्हें इवन मिलेगा नंबर. ठीक है, ऐड करने पे भी इवन नंबर मिलेगा, 0 मिले, 2 मिले, और सब्ट्रैक्ट करने पे भी तुम्हें नंबर जो मिलेगा दैट विल आल्सो बी इवन. सो दैट इज वाई डेफिनेटली हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो मिलेंगे सारे के सारे इंटीग्रल ही मिलेंगे. सो आंसर विल बी 8. बट ये मेथड पता है तो बेस्ट है. तीसरा मेथड थोड़ा लंबा है, तो वो मेथड तो एग्जाम में टाइम ज्यादा लेगा, तुम्हारा टाइम ज्यादा खाएगा. बट उसमें ऐसे करोगे कि मॉड ऑफ x प्लस वाई सबको, सारे के सारे केसेस को कंसिडर करोगे. फर्स्ट केस विल बी दैट बोथ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे. सो इक्वेशन हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से. अकॉर्डिंगली वैसे सॉल्व कर लोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कितने क्वेश्चंस हो गए अपने? 17 हो गए. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is that maximum of x comma 2 minus minimum of x comma 2, this is equal to mod of x plus 2 minus mod of x minus 2. To find number of real values of x. फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x. क्या होगा? ठीक है, तो मॉड हमारे यहाँ दो हैं, एक x प्लस 2, एक x माइनस 2, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हो गए -2 एंड +2. -2 एंड +2, तो 3 केसेस बनेंगे. 3 केसेस विल बी देयर. फर्स्ट केस
when x is greater than equal to 2. Second case, when minus 2 is less than x is between minus 2 and 2. And third case, when x is less than minus 2. तो फर्स्ट केस में both the brackets will be opening with a positive sign. तो राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा x plus 2 प्लस और x plus 2 माइनस x minus 2. तो x minus 2 ब्रैकेट के साथ में प्लस 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी x plus 2 माइनस x minus 2. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4. और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. जब x हमारा 2 से बड़ा है या एट द मैक्स 2 के इक्वल होगा. सो डेफिनेटली x और 2 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा? x विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, हायर वैल्यू. और मिनिमम क्या होगा? 2 विल बी मिनिमम वैल्यू. अगर x मैक्सिमम है 2 विल बी मिनिमम. x माइनस 2 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा दैट x विल बी इक्वल टू 6. एंड दैट इज सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल assumption that x is greater than equal to 2. तो 6 भी also greater than equal to 2 है. This will be the solution. x is equal to 6 will be the solution. Second case, when x is between minus 2 and 2, तो x क्योंकि minus 2 से 2 के बीच में है, तो डेफिनेटली x और 2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा? 2 होगा. तो 2 विल बी मैक्सिमम, मिनिमम विल बी x. तो 2 माइनस x, दिस विल बी इक्वल टू, और मॉड ऑफ x प्लस 2 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, x माइनस 2 नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा. तो x प्लस 2 विल बी x प्लस 2 ओनली. और माइनस ऑफ x माइनस 2, तो दिस विल बी प्लस x माइनस 2. तो यानी कि x प्लस 2 प्लस x माइनस 2. So this is equal to 2x and 3x is equal to 2 आ गया. तो x equal to 2/3 आ जाएगा. x equal to 2/3 आ जाएगा which is in the following range. तो this will also be the solution. ये तो solution था ही, ये भी solution हो जाएगा. Third case, when x is less than minus 2. So if x is less than minus 2, definitely maximum will be 2, minimum will be x, 2 minus x. और right hand side में both brackets will be opening with a negative sign. तो minus x minus 2 plus x minus 2, x से x cancel out हो गया, बच गया हमारा minus 4. So x will be equal to 6. But x 6 नहीं हो सकता because x को less than minus 2 होना है. So this will not be the solution. तो यहाँ से तो कोई solution नहीं मिलेगा. So there will be 2 solutions exactly. Answer will be 2 solutions. Number of real values of x will be 2. Integral तो पूछा नहीं है, real पूछा है, real are 2. Integral 1 है. Integral तो सिर्फ पहला वाला है x equal to 6. Second वाला integral तो नहीं है but real जरूर है. So answer will be 2 only in this case. Okay. Question number 19. Question number 19. ठीक है, there are 3 numbers. Let us say numbers are a, b, c. So average of these 3 numbers is equal to 28. Okay, and let us say they are in increasing order. कि a is less than b, b is less than c. a less than b, b less than c. And question is saying whether the largest is decreased by 10. तो largest number यानी कि c को when we are decreasing by 10, and the smallest is increased by 7 यानी कि a is increased by 7. So in that case, the average becomes 2 more than the middle term. So the new average is equal to b plus 2. Okay, so initially average था ABC का 28, तो sum will be 84. A plus b plus c will be equal to 84. Isn't it so? Now the largest is decreased by 10, तो c minus 10. Smallest is increased by 7, तो a plus 7. Middle term is unchanged, and now the average is b plus 2. Now the new average is b plus 2. तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? हमने एक नंबर को इंक्रीज किया है 7 से, एक को डिक्रीज किया है 10 से, तो नेट में सम में डिक्रीज कितना आएगा? प्लस 7 माइनस 10, तो 84 प्लस 7 माइनस 10, दिस इज 81. तो एवरेज विल बी 27. 81 तो सम है, एवरेज विल बी 27, न्यू एवरेज विल बी 27, एंड दिस इज b प्लस 2. तो b इज इक्वल 25 आ गया. a b c, b इज 25, सम वाज 84, तो a प्लस c क्या आ जाएगा? a प्लस c विल बी इक्वल टू 84 माइनस 25, 59. Okay, 59 आ जाएगा. And question is saying difference between largest and smallest number after the change, that is 64. ठीक है, so difference between a plus 7 and c minus 10, that difference is 64. And still the order remains unchanged. Even after the change, a plus 7 is the smallest number, c minus 10 is the largest number. So c minus 10 minus a plus 7, this is equal to 64. So c minus a will be equal to 17 plus 64, 81. तो a प्लस सी है 59, c माइनस a है 84, 81. सम कर दो वो थी क्वेश्चंस को, सम करने से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2c विल बी इक्वल टू 140 एंड हेंस c विल बी इक्वल टू 70. और क्वेश्चन में हमसे लार्जेस्ट नंबर ही पूछा था कि व्हाट वाज द ओरिजिनल लार्जेस्ट नंबर. तो c इक्वल टू 70, 70 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, 70 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 20.
Question number 20. There is a 300 liter mixture. And this mixture contains some water and some milk. Contains water and milk. ठीक है. सो डबल द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल वाटर, जितना वाटर था उससे ज्यादा क्वांटिटी को हमने रिमूव किया और रिप्लेस किया विद वाटर. ठीक है, डबल द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल वाटर is removed and replaced with water. And replaced with water. Okay. So now concentration of milk becomes 72%. So question is asking कि initial quantity of water in mixture क्या था? Find initial quantity of water in mixture. Initial quantity of water in mixture. ध्यान से समझना, this is a very good question. वेरी गुड इन द सेंस कि यहाँ पे इक्वेशन बनेगा और टिपिकल इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, टाइम लगेगा. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर. ओके, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो इनिशियली हमें गिवन है वाटर एंड मिल्क. टोटल इज 300 लीटर्स. लेट अस अज्यूम वाटर इज x लीटर्स. सो इफ वाटर इज x लीटर्स, तो मिल्क विल बी 300 माइनस x. Isn't it so? ठीक है, टोटल इज 300. एल को हटा ही देते हैं. 300 वाटर इज x और मिल्क इज 300 माइनस x. ओके, नाउ 2x ऑफ द क्वांटिटी इज removed and then replaced with water, and finally the milk is 72% in total. तो फाइनल क्वांटिटी पे हमारा 300 लीटर्स ही रहेगा. दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, क्योंकि रिप्लेसमेंट ही हुआ है. रिप्लेसमेंट में हमारा टोटल क्वांटिटी थोड़ी चेंज हुआ है. ठीक है, जितना हटाया है उतना ही ऐड किया है. बट फाइनली मिल्क का कंसेंट्रेशन कितना? 72%, यानी कि 100 लीटर्स में से 72 लीटर्स मिल्क होगा, तो टोटल 300 में से होगा 216 लीटर्स मिल्क और 84 लीटर्स होगा वाटर. 84 लीटर्स विल बी वाटर. क्या ये पार्ट क्लियर है? और फाइनली हमें ये भी पता है कि वी हैव ओनली एडेड वाटर, यानी कि 2x लीटर्स हमने वाटर ऐड किया है. मिल्क तो 0 था फाइनल एडिशन में, बट जब रिमूव किया है हमने, तो रिमूवल में मिल्क भी रिमूव होगा. इजंट इट सो? रिमूवल में मिल्क भी रिमूव हुआ होगा. क्या है क्लियर है? ठीक है, तो व्हेन वी हैव रिमूव्ड 2x लीटर्स, सो इनिशियली रेशियो हमारा वाटर और मिल्क का क्या है? x इज टू 300 माइनस x. इन टोटल 300 में से वाटर इज x. सो इफ वी आर रिमूविंग 2x यूनिट्स, तो कितना वाटर रिमूव होगा? क्योंकि वाटर है x बाई 300 इन 1 लीटर. x बाई 300 लीटर्स इन 1 लीटर, और टोटल हम 2x लीटर्स रिमूव कर रहे हैं, तो वाटर कितना रिमूव हो जाएगा? 2x इंटू x बाई 300. सो x लीटर्स वाटर था, 2x इंटू x बाई 300 रिमूव हुआ, 2x हमने ऐड किया, फाइनली 84 है. तो क्या ये इक्वेशन नहीं बन रहा सिंपल? सो x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 300 प्लस 2x इज इक्वल टू 84. सो 3x माइनस 2x स्क्वायर बाई 300, दिस इज 84. या फिर 2 से डिवाइड कर दोगे सेकंड वाले में, तो x स्क्वायर बाई 150 हो जाएगा ये. 3x माइनस x स्क्वायर बाई 150, दिस इज इक्वल टू 84. अब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाने के, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, 3x माइनस x स्क्वायर बाई 150, दिस इज इक्वल टू 84. ठीक है, तो अगर x स्क्वायर बाई 150, क्योंकि x स्क्वायर है, ओके, और 150 से डिवाइड भी हो रहा है, दिस विल बी स्मॉलर टर्म इन जनरल. तो अगर हम x की वैल्यूज पुट करके देखें, अगर हम x को डेफिनेटली एक बात समझो, 3x इक्वल टू 84 करोगे, x 28 आएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी 28 से बड़ी होगी, बिकॉज हम उसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं. तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 28 फॉर श्योर, बिकॉज x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, सो x की वैल्यू 28 से तो बड़ा होगा. 30 पुट करोगे, 30 सेटिस्फाई कर जाएगा, बिकॉज 3 into 30 इज 90. 90 माइनस 900 बाई 150, यानी कि दिस विल बी 90 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 84. तो x इक्वल टू 30 विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. तो डायरेक्टली तुम्हें आंसर मिल जाएगा दैट x इज इक्वल टू 30. क्वेश्चन क्या पूछा है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, x की वैल्यू पूछा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 30 ओनली. क्या ये बात समझ पा रहे हो? दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिससे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. बाकी क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्वाड्रेटिक तो बन ही जाएगा फिर. क्या ये क्लियर है? ठीक है, एनी अदर मेथड विल बी मच लॉन्गर. कोई और भी मेथड यूज करोगे तो वहां पे तुम्हारा टाइम्स जो है ज्यादा लगेगा.
क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बिकॉज मिल्क में हम एडिशन नहीं कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट तो वाटर का कर रहे हैं, तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क मल्टीप्लाइड बाई रिप्लेसमेंट फैक्टर। तो इनिशियली मिल्क कितना है, इनिशियली मिल्क है 300 माइनस एक्स अपॉन 300, फाइनली मिल्क है 72% यानी 72/100, एंड दिस विल बी इनिशियल इनटू कितना रिप्लेस कर रहे हैं हम, 2x रिप्लेस कर रहे हैं 300 में से, तो 300 माइनस 2x बाई 300। ओके, दिस विल बी आवर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को तुम एक्सपैंड करोगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगा, सॉल्व तो इसको भी कर लोगे बट ये टाइम ज़्यादा खाएगा। या इसको लिख सकते हो 300/300 यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 300 इंटू 1 माइनस 2x अपॉन 300, एंड दिस इज 72/100 विच इज 18/25। तो अब अगर इक्वेशन बनाना ही है तो x/300 को एज्यूम कर लो, लेट अस से y एज्यूम कर लो। ओके, तो इक्वेशन विल बी 18/25 इज इक्वल टू 1 माइनस y इंटू 1 माइनस 2y। So the equation will be 1 minus 3y plus 2y square is equal to 18/25. Multiply by 25. So 25 minus 75y plus 50y square, this is equal to 18. Okay, 50y square. So 50y square minus 75y plus 25 minus 18 यानी plus 7, this is equal to 0. So 50 into 7 आ रहा 350, 75 है 70 into 5 आएगा 350. 350. ओके, तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया ना, 70 एंड 5 आर द टू पार्ट्स, एंड डिवाइड दिस बाय 50। तो हमारा 7/5 या फिर 1/10, दीज आर टू वैल्यूज ऑफ y। y कैन बी 7/5 और 1/10, बट y हमारा क्या था, x/300 था, x/300 था, तो x/300 डेफिनेटली विल बी लेस देन 1, तो 7/5 तो नहीं हो सकता है, मस्ट बी 1/10, तो x/300 इज इक्वल टू 1/10, and hence x will be equal to 30 liters. So this will be the answer. This will be the answer. Clear है? Okay. तो प्रॉपरली तुम्हें अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता होगा या ऐसे अप्रोचेस नहीं सीखी होंगी, नहीं प्रैक्टिस की होंगी, तो एग्जाम में फिर फंसोगे ऐसे क्वेश्चन में, बिकॉज टीटा क्वेश्चन था, ऑप्शंस तो गिवन नहीं थे, ऑप्शंस गिवन होते तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, पुट कर देते ऑप्शंस को, बट ऑप्शंस गिवन होते तब, गिवन तो नहीं थे। ओके, तो इज द क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन। अब लास्ट के जो दो क्वेश्चन है उनका एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, पता नहीं है एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, ठीक है। सो देयर वर टू क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन, एंड probably the equation was ax minus pk, this is equal to -3, ठीक है, एंड नो सॉल्यूशन was being asked शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो कमेंट में मेंशन करना कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था, बिकॉज जब तक वो लैंग्वेज एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा इसका सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे, बिकॉज मुझे बाकी ऑप्शंस का भी आइडिया नहीं, ऑप्शंस क्या थे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। तो एक कमेंट में ये प्रॉपर क्वेश्चन लिख देना, और तुम कमेंट में चेक कर लेना, अगर किसी ने को प्रॉपर क्वेश्चन कोई लिख देगा तो आई विल बी पिनिंग द कमेंट एंड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज आल्सो नॉट क्लियर फ्रॉम द डेटा, एंड दैट क्वेश्चन वाज दैट देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, ठीक है, एंड देयर वाज सम रेंज टाइप वाला क्वेश्चन था कि 40% गर्ल्स पास एटसेट्रा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, और रेंज था कुछ 72 to 80, सेट थ्योरी पे बेस्ड टिपिकल क्वेश्चन था। सो फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट द कंप्लीट क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड कंप्लीट क्वेश्चन इन द कमेंट्स, और अगर इन दोनों क्वेश्चंस का कमेंट में तुम प्रॉपरली लैंग्वेज लिख दोगे तो आई विल बी सॉल्विंग दोज एज वेल, ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा, ठीक है। सो दीज ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन एंड द सेशन नंबर 3 इन द स्लॉट 3, एंड आई बिलीव कि सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, ठीक है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल अगर सेशन पसंद आया है तो। कोई भी डाउट है तो मेक श्योर टू ask that query. You can also connect me on Telegram at ADITYAKT, or you can message me at ADITYAKT, या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो मैथोलॉजिकल। इतना ही रखते हैं इस सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।